न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग। बानपुर एयरपोर्ट को जल्द चालू करने को लेकर जारी है कायावाद। मंत्री मलय घटक, मेयर विधान उपाध्याय ने की इसको स्टील प्लांट के अधिकारियों के साथ बैठक। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले टोटो चालक अब ट्रैफिक पुलिस पर भी उठाने लगे हैं हाथ। न्यामतपुर में घटी ऐसी घटना, टोटो छोड़ भागा उसका मालिक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कथित हत्या को लेकर दुर्गापुर में बीजेपी का अनोखा विरोध प्रदर्शन। विधायक और कार्यकर्ताओं ने तर्पण कर दी श्रद्धांजलि। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात को देखते हुए आसनसोल में भी जारी हुआ अलर्ट। रेल पार में अभी से माइकिंग। आपको सावधानी। तृणमूल कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के नेत्री पर लगाया नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। आसनसोल रेल पार के सैकड़ों दुकानदारों को अवैध कब्जा हटाने का रेलवे ने दिया नोटिस। ISP द्वारा संचालित बनपुर कालाझरिया स्थित हवाई अड्डा को अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा के रूप में जल्द खुलवाने को लेकर शनिवार को राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने ISP के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन के कई विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के बाद मंत्री मलय घटक ने बताया कि बनपुर हवाई अड्डा को जल्द खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बाधाएं हैं, उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जैसे कुछ पेड़ बाधा आ रहे हैं, उनमें से कई पेड़ों को काट दिया गया है, जो बचे हैं उसको जल्द ही काट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ एक बिजली का ट्रांसफार्मर है, उसे भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अन्य छोटी बाधाओं को दूर कर जल्द ही इस हवाई अड्डा को खोला जाएगा। দুটোরই যে কোনো যে ছোটো ছোটো সমস্যা ছিল সেগুলো কত তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় এবং আশা করি সমাধান হয়ে যাবে। এয়ারপোর্ট যাতে তাড়াতাড়ি চালু করা যায় আর জলের কিছু যেগুলো ছিল সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায়। আমি ছিলাম, আমাদের মেয়র সাহেব ছিলেন, বিধান উপাধ্যায়, প্রশাসনের সবাই ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মিটিং হয়েছে, ভালো হয়েছে। এয়ারপোর্ট নিয়ে কি সিদ্ধান্ত, মানে কি আলোচনা হলো, মানে যেটা চালু হয়েছে? এয়ারপোর্টে কিছু গাছ আছে, গাছগুলো কাটা, কিছু গাছ কাটা হয়েছে, কিছু গাছ এখনও হয়নি, সেগুলো কত তাড়াতাড়ি কেটে দেওয়া যায়। আর একটা ওই আছে আপনার ইলেকট্রিকের একটা ট্রান্সফরমার আছে, সেটাকে ছোট্ট সমস্যা, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে? এই কাজ তো হয়েই যাবে। এই কাজ হলে তারপরে এয়ারपोर्ट अथॉरिटी থেকে যে সমস্ত প্রসেস সেগুলো চালু হয়ে যাবে। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। কিছু সমস্যা আছে, প্লাস নতুন একটা কল্যাণেশ্বরীতে সেকেন্ড ফেজ একটা নতুন প্রজেক্ট চালু হবে, তো সেটারই মিটিং ছিল এবং পুরনো কিছু সমস্যা যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। সেই এলাকায় কোন কোন জায়গায় জল সরবরাহ করবে? না, ওটা সেকেন্ড ফেজটাতে, যেমন কল্যাণেশ্বরে এখন যে ফেজটা আছে, এখন যেটাতে জল চলছে, এটাতে পুরোটাতে জল চলছে। আমাদের কুলটি সাইডটাতে চলছে, আমাদের সারানপুর চলছে, বারাবণী চলছে। তো কিছু কিছু জায়গায় হয়তো জল কম আসছে বা কিছু আসছে, সেটাই PHE ডিপার্টমেন্টকে বলা হলো যে ঠিকঠাক করতে, এবং ওনারা আশ্বাস দিলেন যে সেকেন্ড ফেজটা আমরা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে DPR পাঠিয়ে দিয়েছি, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আমরা চালু করছি। সেটার থেকে আমরা মানুষকে সাফিসিয়েন্ট জল দিতে পারবো। কর্পোরেশনের যে সংকটটা চলছে, সেই ট্যাঙ্কটা নিয়ে যে ইয়ে করা হচ্ছে, সেটা কি চলছে? দেখুন, কর্পোরেশন থেকে মানে একটা ভোটের আগে হয় না, সে হাহাকারের মতন করে দিয়েছিল, কিন্তু আদপে আমরা নিজেরা বুঝছিলাম, আদপে কিন্তু তা ছিল না। হয়তো 50টা লাইন আছে, সেখানে হয়তো একটা কলে জল পড়ছে না, দুটো কলে জল পড়ছে না, হাইলাইট করে দিচ্ছিল যে আসানসোলে জল কম। হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গায় কিছু পাড়া আছে, কিছু জায়গা আছে যেখানে হয়তো জলের এখনও অসুবিধা রয়েছে একটু আধটু, তো সেগুলোকেও আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা রয়েছি। এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের স্টাফেরা কর্পোরেশনের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মানুষকে নিয়ে, যাতে জলটা মানুষকে দেওয়া যায়, এবং আমরা লেগে রয়েছি এটাতে। टोटो चालक के द्वारा सरेआम कानून उल्लंघन करने का सनसनीखेज घटना सामने आया है। ये घटना कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर GT रोड चौराहे की है, जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत घोष के ड्यूटी करने के दौरान एक टोटो चालक ने सरेआम उनके वर्दी पर हाथ डाल दिया, जिसके कारण उनके वर्दी के बटन टूट गए। यह आरोप स्वयं रंजीत घोष ने लगाया है। तब तक लोग इकट्ठे हो गए। मामले को बढ़ता देख टोटो चालक टोटो छोड़कर फरार हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि न्यामतपुर चौराहे का लिथुड़िया रोड काफी व्यस्ततम रोड है। अक्सर इस रोड पर जाम लग जाता है।
आज भी सुबह जाम लग गया था। इस जाम को हटवाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए रंजीत घोष गए। वहाँ एक टोटो चालक के कारण जाम लगा था। उन्होंने टोटो चालक को टोटो हटाने को कहा तो टोटो चालक उनके साथ बहस करने लगा। विवाद बढ़ता देख रंजीत घोष ने टोटो चालक को फाड़ी चलने को कहा। इस पर आक्रोशित होकर टोटो चालक ने उनकी वर्दी पर हाथ डाल दिया। इस घटना के संबंध में बताते हुए रंजीत घोष ने कहा कि टोटो चालक को वे पहचानते हैं। जाम हटाने को कहने पर उसने मेरी वर्दी पर हाथ डाल दिया। টোটো চালককে চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। নাকি আপনার সাথে ধস্তাধস্তি করেছে ও? ওকে আমি বললাম যে তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়েছো, তোমাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি ওকে ফাঁড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি, ঠিক আছে? ও তখন জবরদস্তি করছে আমার সঙ্গে। যাওয়ার বোতামও ছেড়ে দিয়েছি আপনি তো। আপনার নামটা দাদা? আমার রঞ্জিত কুমার ঘোষ। টোটো চালককে পেয়েছেন? হ্যাঁ টোটো চালক ধরা পড়েছে? না, ও তো আমি তো সামালতে পারলাম না, তো টোটোটা নিয়ে চলে গেলাম, ওদিকে চলে গেলাম। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने टोटो को जब्त कर न्यामतपुर फाड़ी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद ट्रैफिक ओसी इम्तियाज उल हक घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्या के विरोध में शनिवार को अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के भाजपा विधायक लखन घरुई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दामोदर नदी में नहाकर कथित राजनीतिक हत्या के शिकार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को तर्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विधायक लखन घरुई ने कहा कि केंद्र के गृह मंत्री के बंगाल दौरे के दौरान युवा भाजपा नेता की तृणमूल के गुंडे ने हत्या कर दी। पश्चिम बर्धमान जिले में भी एक पर एक बीजेपी नेता संदीप घोष एवं दुर्गापुर बीजेपी नेता के पिता राम प्रसाद सरकार की हत्या की गई। अभी तक हत्या के आरोपी को सजा नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। इन राजनीतिक हत्या में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं की आत्मा की शांति के लिए आज भाजपा की तरफ से तर्पण किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता चंद्रशेखर बैनर्जी, अभिजीत दत्ता के साथ अनेक कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। 2018 থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 106 জন কর্মী পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মী হত্যা হয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের দুর্গাপুরের যে পৌর বিধানসভা 18 সালের 10 অক্টোবর সন্দীপ ঘোষ, তিনি সরস্বতীগঞ্জ গ্রাম থেকে মিটিং করে ফিরছিলেন, বুথ সভাপতি ছিলেন, তাকে দুষ্কৃতীরা, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করেছে।
অনুরূপভাবে আমাদের দুর্গাপুরের 43 নম্বর ওয়ার্ডের রামপদ সরকার, রামপ্রসাদ সরকার 17 এপ্রিল তৃণমূলের কাউন্সিলর নেতৃত্বে 10 জন গুন্ডা তৃণমূলের তাকে ঘর থেকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে। সারা বাংলার যে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, তারই প্রতিবাদে আমরা সারা বাংলা জুড়ে এখন তর্পণ করছি এবং সন্দীপ ঘোষ এবং রামপ্রসাদ সরকারের আত্মার শান্তির কামনা করে আজকে বিজেপির পুরো জেলা নেতৃত্ব মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি অভিজিৎ দত্ত, আমাদের পৌরসভা কাউন্সিলর আমাদের চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, রূপম লাহা, আমি তৎসহ সারা দুর্গাপুরে বিজেপি কর্মীরা, আসাম জেলার কর্মীরা এখানে এসেছি। তর্পণ করতে এসেছি একটা কারণেই, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং সেই পরিবারের পাশে থাকার জন্য সে বার্তা নিয়ে আমরা তর্পণ করেছি। এখন এখান থেকে আমরা তর্পণ করে সেই পরিবারের বাড়িতে যাব, সেই বাড়িতে কিছু সাহায্যে দিলীপদার নেতৃত্বে আমরা কিছু সাহায্যে তুলে দেবো। आपको सावधानी दिया जा रहा है, जिसके कारण आसनसोल नगर निगम की ओर से एक हेल्पलाइन का प्रबंध किया गया है। कोई भी उपयोग और मांग की ओर से निकाला। दक्षिण अंडमान और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन गहरे दबाव की ओर बढ़ रहा है। डीप डिप्रेशन तूफान अशांति में बदल सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि हालांकि अभी चक्रवात के बंगाल पहुंचने का अनुमान नहीं है, लेकिन 10 से 13 मई तक पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार 11 से 13 मई तक पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान में यह डिप्रेशन दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर क्षेत्र में स्थित है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि डीप डिप्रेशन रविवार 6 मई को पूर्व संध्या बंगाल की खाड़ी के पास एक चक्रवात में बदल सकता है। 10 मई की शाम तक चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम तट और उड़ीसा के पश्चिम मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। बंगाल के तटीय जिले पहले से ही हाई अलर्ट पर है, इस डर से कि कभी भी निम्न दबाव बंगाल में आ सकता है। इनमें आपदा से निपटने के लिए आसनसोल नगर निगम युद्धकालीन गतिविधियों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया कि चक्रवात को लेकर नगर निगम के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। এরিয়াতে যেখানে এখানে কিছু কিছু জায়গা আছে, ওখান থেকে আমাদের অলরেডি প্রিপেয়ারনেস অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে। যেগুলো স্ট্রিট লাইটস আছে, ওখান থেকে কোনো লিকেজ না হয় ইলেকট্রিসিটি, তার জন্য অলরেডি তার স্ট্রিট লাইটে যে বক্সেসগুলো আছে তার অলরেডি আমাদের ইন্সপেকশন চলছে। WBSUDCL এর সঙ্গে আমরা কোঅর্ডিনেট করেছি যাতে কোনো ধরনের কোনো অঘটন না ঘটে। তার সঙ্গে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে কোনো আমাদের কন্টামিনেশন না হয়। আমাদের যত ইম্পর্টেন্ট পাইপলাইন জাংশনস আছে তার ইন্সপেকশন চলছে এবং চেকিং চলছে এবং মাইকিং আমাদের চলছে। আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করছি সো দ্যাট এক্সট্রা বোটস আমরা কিছু রাখতে পারি ইন কেস অফ ভেরি হেভি রেনফল। এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টসও আমরা করতে পেরেছি। এবং লাস্টলি একটা 24/7 কন্ট্রোল রুম আমাদের অলরেডি ফাংশনিং আছে, তার নাম্বার হচ্ছে 7479001875। তো এই ইমিডিয়েট মেজার্স আমরা নিয়েছি সো দ্যাট ইফ দি সাইক্লোন হিটস দি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়া উই আর প্রিপেয়ার্ড। স্যার, লাস্ট ইয়ার যেটা হয়েছিল, গাড়ি নদীর সংস্কার না হওয়ার কারণে অনেক ঘর বাড়ি ডুবে গেছিলো, বহু ক্ষতি হয়েছিল মানুষের, সেই জায়গাটা কি আবার দেখা হচ্ছে? অলরেডি গারুই নদী নিয়ে আমরা 3 মাস আগে থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছি এবং তার ডিসিল্টেশন এবং ড্রেজিংয়ের কাজ অলরেডি চলছে। আমি আশা করছি আমরা খুব শীঘ্রই সেটা শেষ করে ফেলবো এবং অলরেডি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সেটা টেক আপ করা হয়েছে फॉर ওটাকে আরও প্রোঅ্যাক্টিভলি শেষ করার জন্য। वहीं पिछले वर्ष चक्रवात के दौरान हुई बारिश से तबाह हुए लोगों ने अपने दर्द को बयां किया। आइए सुनते हैं। घर सबका ताले के ऊपर का पानी पार हो रहा था और देखने सब खाने पीने मतलब 10 दिन जो भी एक दिन 2 दिन बाहर पानी जब तक कम नहीं तब तक आदमी कुछ खाया पिया नहीं। दूसरा घर जिसका बड़ा घर था उसका घर में तब एक दिन गुजारा। इस बार भी तूफान आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? आने वाला अभी आया है नहीं, फिलहाल आएगा तो देखा कॉर्पोरेशन क्या दे रहा है, उसका नहीं कुछ नहीं देखेंगे। बगल में हमारा घर है, देखिए पूरा सीमेंट का काम बाकी और गेट खोल के आपको अंदर दिखाएंगे। सारा सीमेंट वगैरह हम लोगों का यहाँ रखा है। बाढ़ तो हमेशा आता है और वहाँ पे नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचता। हम तो यही इंतजार में थे, पर पानी इतना आया कि हमारा पूरा डूबा हुआ था, अभी तक पानी में कदा गया और उसमें सीमेंट वगैरह जितना सामान था सब बर्बाद। इस बार फिर तूफान आने वाला है, इस बार फिर आने वाला, तो इस बार तो हम कुछ बना नहीं रहे उसी तरीके से। हमें कॉर्पोरेशन से सबको सचेत किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या बोलेंगे? सतर्क हो रहा था, हम सतर्क होकर तैयार होकर रहेंगे।
आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। একটা কাজে অ্যাপ্লাই করেছিল কে এই ছেলেটা ঠিক আছে টাকা দিয়েছিল 11 লাখ 56,000। एक कहावत है कि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह कहावत चरितार्थ हुआ है बाराबनी थाना क्षेत्र के खैराबाद ग्राम निवासी असीम गोराई पर। असीम गोराई ने आरोप लगाया है कि उनके ही दल के एक महिला नेत्री मंजू राय ने उन्हें रेलवे के RPF विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर 16 लाख रुपए ले ली है, लेकिन ना ही उसने नौकरी दिलवाई और ना ही वह पैसा वापस कर रही है। असीम गोराई ने बताया कि वह तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। प्रत्येक चुनाव में वह पोलिंग एजेंट का भी कार्य करता है। वह विधान उपाध्याय के साथ तृणमूल कांग्रेस के लिए कार्य करता है। চাকরি দেওয়ার নাম করে বিধানদার অফিসে মঞ্জু রায় বলে এক মহিলা মহিলাতে থাকে চক্রবর্তী পাড়ায়, তো আমার কাছে 16 লাখ টাকা নিয়েছিল। ও পার্টি অফিস থেকে আমার পরিচয় হয়, সেখান থেকে বিধানদার অফিসে এসে মঞ্জু রায়কে ডাকা হয় এবং ফয়সালা করা হয় যে 3 মাসের মধ্যে টাকাটা 3 লাখ করে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা যায় যে 3-4 মাস হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত আমি 1 টাকা ফেরত পাইনি এবং বিধানদাকেও অনেকবার বিধানদার অফিসে গিয়েছি, কিন্তু কোনো কাজ বা ফলাফল পাইনি। তাই আমি যদি এই টাকাটা না পাই সুসাইড করতে বাধ্য থাকিব। কি চাকরি করতে হবে? রেলে RPF চাকরি করতে বলছে, RPF পুলিশ, রেল পুলিশ। হ্যাঁ, বারাবণী থানাতে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। অভিযোগ জানিয়ে বড়বু মেজবু কেসটা টেকেল করছিল, কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল যে তারা আর কোনো নড়াচড়া করছে না কেসটার ব্যাপারে। এখানে আজকে কেসে নর্থ থানাতে জানালাম, কিন্তু আমাদের সেম অবস্থা। এখানে আপনাদের নিল না, জমা নেয়নি। কি বললো? বললো যে ম্যাটারটা পলিটিক্যাল আছে। হ্যাঁ, আমি তৃণমূল কংগ্রেসে জড়িত আছি।
বিধানদার সাথে আমি অনেকদিন ধরে পোলিং এজেন্টে থাকতাম। এই যে বিধানসভা এই লোকসভা ভোটটা এটাতেও পোলিং এজেন্ট থেকেছি। বিধানদার হয়ে আমরা অনেক পার্টিতে তৃণমূল পার্টিতে কর্মী হিসেবে খাটি। তো যে আপনার থেকে টাকা নিয়েছে উনি কোন পার্টি থেকে? ও তৃণমূলে পার্টি। কি নাম ওনার? মঞ্জু রায়। वहीं इस मामले को लेकर असीम गोराई का सहयोग करने के लिए मीम के जिलाध्यक्ष दानिश अजीज भी थाना गए थे। दानिश अजीज ने कहा कि यह गरीब युवक तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाराबनी के विधायक के ग्राम का रहने वाला है। यह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इस गरीब युवक से तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ने ही 16 लाख ले ली है। इस घटना से प्रतीत होता है कि बड़े नेता अपने ही दल के छोटे कार्यकर्ताओं से पैसा हड़पने लगे हैं। वहीं विधान उपाध्याय से जब इस मामले के संबंध में बात किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 28 তারিখে লাস্ট ডেট হলো। 28 তারিখের পর যদি উনি টাকা দেন ভালো, না দেয় ওরা বুঝে নেবে। ওরা দুজনে বুঝে নেবে কি করবে। আমাদের কোনো রইল না, আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। টাকা কি বিধানকে বলে দিয়েছিল? বিধান কাউকে টাকা বলে দিয়েছিল? হ্যাঁ, টাকা দেবে। ঠিক আছে। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि जो लोग रेलवे की जमीन और मकान को कब्जा किए हुए हैं उन लोगों से रेलवे की मकान और जमीन को मुक्त कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के हवाले देते हुए ईस्टर्न रेलवे आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा भी रेल डिवीजन के कई क्षेत्रों में अवैध कब्जा मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा रेल पर स्थित सैकड़ों दुकानदारों को जमीन खाली करने की नोटिस दी गई। इसमें रेलवे के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो लोग भी रेलवे की जमीन और मकान को अवैध कब्जा किए हुए हैं वो 25 मई तक खाली कर दे। कई दुकानों पर यह नोटिस भी चिपका दिया गया है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद पूरे रेल पार अंचल में हड़कंप मच गया। इस बार यह नोटिस रेल पार के लोको क्वार्टर से शुरू होकर चांदमारी, कसाई मोहल्ला मोड़ एवं आसपास स्थित रेलवे की जमीन को सैकड़ों अवैध कब्जाधारियों को दिया गया है। लेकिन अवैध कब्जाधारी दुकानदारों का यह कहना है कि वे दशकों से यहाँ दुकान चला रहे हैं। इस दुकान से ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है। ये उनकी एकमात्र जीविका का साधन है। वे लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े वे करेंगे। दुकानदारों के इस प्रण से आशंका है कि रेलवे जिस दिन जमीन खाली कराने के अभियान चलाएगी उस दिन टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रेलवे के इस कदम का विरोध करते हुए पार्षद फंसाबी आलिया ने कहा कि मैं और तृणमूल कांग्रेस दुकानदारों के साथ खड़ी हूँ। रेल को इन्हें हटाने के पहले इन दुकानदारों का पुनर्वासन करना होगा। और चिंता भावना यही है कि रेल तो खुद बेआईनी काम करती है। रेल जो इतने जगह बिल्डिंग बनाई है वो क्या उनका प्लानिंग पास करके किया हुआ है। और ये जो जब से ये मोदी सरकार आई है हम लोग देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं। ये तो सेंट्रल का है। यहाँ पर जितने भी नोटिस जितने भी दुकान पे लगी है मेरे वार्ड में और मेरे वार्ड से हटकर भी बहुत सारे वार्ड में लगी हुई है। लेकिन हम उन लोगों से ये कहेंगे कि हम लोग उनके साथ में है। और रेल से भी कहेंगे कि इतने दिन से जो यहाँ दुकान लगी हुई है, बहुत दिन से यहाँ दुकान से यहाँ से लोगों के परिवार चल रहा है, तो भाई इन लोगों का इंतजाम की जाए, वरना भाई इसका आंदोलन हम लोग करेंगे। तो पुनर्वासन को लेकर आप लोग कोई चिंता भावना की हम लोगों को? हाँ, हम लोगों पर बातचीत चल रही है। हम लोग नहीं, उन लोगों को पुनर्वासन करवाएंगे जहाँ कहीं भी, उसको लेकर तृणमूल में या रेल के तरफ से कुछ इसी तरह का? रेल में हम लोग जाएंगे, जहाँ डेपुटेशन देंगे, आंदोलन हम लोग करेंगे हम लोग भाई। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों के हम लोग साथ में हैं। मैं उन लोगों के साथ है। अगर बुलडोजर चले कुछ भी चले फंसबी आलिया वहाँ पर आगे खड़ी रहेगी। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि रेलवे अपना जो भवन बनाता है उसका कोई परमिशन नहीं लेता है, उसका कोई नक्शा पास नहीं है। रेलवे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देता है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से रेल के द्वारा जनहित विरोध कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। रेल जो बिल्डिंग করলো তো রেল তো কোনো বিল্ডিং প্ল্যান পাস করে কর্পোরেশনের কাছ থেকে। রেলের তো উচিত যে বিল্ডিং হবে সেই বিল্ডিংয়ের প্ল্যানটা পাস করাবে, শহরের মধ্যেখানে থাকবে। আর রেল যেদিন থেকে মোদী সরকার এসেছে ভারতবর্ষে সেদিন থেকে যেদিন রেলের বাজেট উঠিয়ে দিয়েছে সেদিন থেকে রেল ধ্বংস হতে শুরু হয়েছে এবং সেদিন থেকে রেলের অনিয়মিত কাজ শুরু হয়ে গেছে। রেল মানুষের কথা ভাবছে না, এখন রেল পরিষেবা দেওয়ার কথা ভাবছে না, রেল এখন ফ্রেট করিডোরের কথা ভাবছে। আদানি আদবানি এই সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ী যারা রয়েছে তাদের এইগুলো দিয়ে দেবে এবং তাদের ভাবনার মধ্যেখান দিয়ে যাতে আসানসোল পরিচালিত হবে এটা উনি ভাবছেন। রেলের যারা আধিকারিক রয়েছেন এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী এক বুলেট ট্রেন চালাতে গিয়ে ভারতবর্ষকে লসের মুখে সম্মুখীন করে দিয়েছে এবং যার জন্য ভারতবর্ষের আর্থিক এত দুর্নীতি
এবং মুদ্রাস্ফীতি এত উঁচুতে উঠে গেছে। তো আজকে যদি আবার ওই ফ্রেড করিডোর করে ধার করতে যায় এবং মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করতে যায় এবং মানুষগুলোকে বেকার করে দেয় এবং মানুষগুলোকে ঘরের ছাদহীন করে দেয়, তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে এই মানুষগুলো রেলের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন করবে। আপনারা কিছু করবেন না, আমরা তো বলেছি ওদের আন্দোলনে আমরা থাকবো এবং আমরা তো বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি চাপাটি দিয়েছি এবং আমাদের যিনি প্রাক্তন আমাদের এখানকার প্রার্থী ছিলেন, আমরা তাকে নিয়ে অলরেডি রেলে বোর্ডে আমরা এই কথাটাকে উত্থাপন করেছি এবং আমরা বলেছি যে আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক থাকবে। মলয় ঘটকে আশ্বাস দিয়েছেন ওনাদের আন্দোলনের সঙ্গে থাকবেন। গত কয়েকদিন পূর্বে মশাল মিছিল বের করা হয়েছিল, সেই মশাল মিছিলে ওনাদের সমর্থনে আমরাও পা মিলিয়েছিলাম এবং আগামী দিনে বলেছি যে আন্দোলনই হবে না কেন সেই আন্দোলনে আমরা থাকবো। তো রেল আপনি বলছেন রেল ইনলিগাল করেছে, ইনলিগাল বাড়ি করছে, সব কিছু করছে, তো ওটা বিরুদ্ধে আপনারা কি নোটিশ দেবেন বা ওদেরকে? আমরা অনেক চিঠি করেছি। রেল ট্যাক্স দেয় না, রেল বিল্ডিং প্ল্যান পাস করে না, রেল রাস্তা বন্ধ করে দেয় সাধারণ মানুষের জন্য, রেলের বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। রেল যেটা নিজেদের আইন তৈরি করে রেখেছে, এখানে আসলে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग।